بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ذاکر افریدی آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم مائکروسافٹ ورڈ کے ایڈیٹنگ بلاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مائکروسافٹ ورڈ کا ایڈیٹنگ بلاک ہمیں اپنے ڈاکومنٹ میں کسی بھی ٹیکسٹ کو، کسی بھی لفظ کو تلاش کرنے کے لیے، اسے ریپلیس کرنے کے لیے آسان ٹولز فراہم کرتا ہے۔ اس بلاک میں ریپلیسمنٹ اور فائنڈ کے علاوہ سلیکشن ٹول بھی ہے، جس کے ذریعے ہم کوئی بھی آبجیکٹ کو جو ایک سے زیادہ ہوں انہیں آسانی سے ڈریگ کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائنڈ پر آتے ہیں، اور فائنڈ پر آنے کے بعد ہم نے مثلاً کوئی لفظ تلاش کرنا ہے، اور وہ لفظ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لفظ ہے لک۔ ٹھیک ہے، ہم اس لفظ کو اپنے ڈاکومنٹ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ لفظ ایک یا دو بار ایک دو پیراگراف میں ہو تو بہت ہی آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر پورے پیراگراف یا پورے ڈاکومنٹس میں سینکڑوں صفحات ہیں اور ہمیں یہ لفظ تلاش کرنا ہے، اسے ریپلیس کرنا ہے کسی اور لفظ سے، تو پھر بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہم ایڈیٹنگ بلاک میں موجود ان آپشنز کے ذریعے انہیں آسانی سے تلاش بھی کر سکتے ہیں اور اس پر آسانی سے کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، ہم لک کو تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے لک، اور لک کے بعد ہم فائنڈ نیکسٹ پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک لک یہاں موجود ہے، ایک یہاں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں اس کے ذریعے تو ہم اس طرح تلاش کر رہے ہیں۔ اب یہ دوسرے پیج پر بھی جائے گا، جہاں جہاں لک لکھا ہوگا وہاں یہ ہمیں بتاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک طریقہ اس کا اور ہے کہ ہم تمام الفاظ کو ایک ساتھ ہائی لائٹ کریں کہ بھئی یہاں یہاں لک موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میں ریڈنگ ہائی لائٹ پر ڈاؤن ایرو پر کلک کر کے ہائی لائٹ آل اس پر کلک کرنا ہوگا۔ ہم جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ لک جہاں جہاں لکھا ہوگا، جتنے پیجز پر ہوگا، یہ ہمیں بالکل اس لفظ کو ہائی لائٹ کر کے بتا دے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں لک لکھا ہوا ہے یہ ہمیں وہاں تلاش کر کے دکھا رہا ہے کہ یہاں یہ لفظ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، ہم اسے اگر ختم کرنا چاہیں تو ریڈنگ ہائی لائٹ پر آئیں گے اور کلیئر ہائی لائٹنگ پر کلک کر دیں گے، تو ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں مور کا آپشن ہے۔ اب اس مور پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم کیا تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے ہم زیادہ ایڈوانس طریقے سے اپنے ورڈ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں اس میں ایک ورڈ تلاش کرنا ہے لک۔ اب لک تو اس میں بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے جو تلاش کرنا ہے اس لک کا فونٹ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، اس کا کلر الگ ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ فونٹ میں ہے، الگ کلر میں ہے، ہمیں وہ لفظ تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں لکھتے ہیں کہ ہمیں لک کا لفظ تلاش کرنا ہے، لیکن اس لک کا لفظ، جس لک کے لفظ کو ہم تلاش کر رہے ہیں، فارمیٹ پر آ کر فونٹ، ہم کہتے ہیں کہ اس کا فونٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہے، اس کا فونٹ ہے وہ امپیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور فونٹ سائز جو ہے وہ اس کا 20 ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فونٹ کا جو کلر ہے وہ گرین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے ہمیں ایک سمپل دکھا دیا یہاں پہ پریویو میں کہ بھائی وہ اس طرح کا لفظ ہوگا جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تقریباً اس طرح کا لفظ ہوگا۔ اب ہم اس کو جب اوکے کریں گے، اوکے کرنے کے بعد ہم فائنڈ پر جب کلک کریں گے، ہم جیسے ہی فائنڈ پر کلک کریں گے تو وہ ہمیں
लुक पर लेकर जाएगा, लेकिन कौन से लुक पर? जिसका फॉन्ट इम्पैक्ट होगा, कलर ग्रीन होगा और फॉन्ट साइज जो है वो 20 होगा। हमें वो इस लुक पर नहीं लेकर आएगा। उसकी वजह ये है कि हमने वहाँ इसे बताया है कि वो उसका फॉन्ट इम्पैक्ट होगा। ये देखें फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉन्ट इम्पैक्ट होगा, 20 साइज का उसका फॉन्ट होगा और फॉन्ट कलर ग्रीन होगा। ठीक है, अब वो देखें यहाँ लेकर आ गया, तो उसने बीच में यहाँ जो लुक है इसको छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ कहीं और अगर है तो ये देखें यहाँ इसको भी छोड़ दिया और यहाँ लेकर आ गया। अब हम जब फिर फाइंड पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि और मौजूद नहीं है और सर्चिंग ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं, इसको हमने देख लिया और नो फॉर्मेटिंग। अच्छा, यहाँ से हम नो फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये एडवांस ऑप्शंस जो इसके क्लियर हो जाएंगे। ये नो फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसे लेस करते हैं और उसके बाद हम रिप्लेस की जानिब आते हैं। अब रिप्लेस में ये है कि मसलन ये लुक का लफ्ज़ है, ये लुक का लफ्ज़ है। ठीक है, और इस तरह की पूरी फाइल में लुक के कहीं बहुत सारे अल्फाज हैं, सैकड़ों अल्फाज हैं समझ लें। ठीक है, जब सैकड़ों अल्फाज हैं और हम कहते हैं कि यार ये लुक की जगह हमने गुड लिखना है, हमने लुक की जगह गुड लिखना है। अब हम जब एक एक को यहाँ लिखने बैठेंगे तो हमें घंटों लग जाएंगे। पहले तो हमें तलाश करना पड़ेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस ऑप्शन के ज़रिए इसे करेंगे तो ये बिल्कुल सेकंडों में सारा काम हो जाएगा। अब हमें इन्हें सिर्फ ये बताना है कि जहाँ जहाँ गुड लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ गुड लिखा हुआ है इसे भाई रिप्लेस कर दो, किससे? लुक से। अब हमने इसे कहा इसको रिप्लेस कर दो लुक से। अब यहाँ गुड लिखा है, यहाँ गुड लिखा है, हम इसे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस। अब ये गुड है, वो कह रहा है कि इसको, हम कहते हैं जी हाँ, तो उसने लुक से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है, वो इसे इसे भी हम करना चाह रहे हैं, वो कह रहे ठीक है ये भी हो गया। अब वो कह रहे हैं ख़त्म, अब कहीं और गुड नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हम इसे ये कहते हैं कि जितने लुक यहाँ लिखे हुए हैं, जहाँ लुक लिखा हुआ है, इन तमाम को गुड से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इन तमाम को गुड से रिप्लेस कर दो, तो वो क्या करेगा? रिप्लेस। ठीक है, गुड गुड गुड, जहां जहां लिखा है उसको गुड से रिप्लेस करता रहेगा। अब अगर हम इसे कहते हैं कि जितना भी इस फाइल में जहां जहां लुक लिखा है तमाम को गुड से रिप्लेस कर दो, तो वो करेगा, हम यहाँ क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर, और अब जहां भी आप तलाश करेंगे आपको लुक की जगह गुड लिखा हुआ नजर आएगा। मसलन अभी हम फाइंड पर आकर अगर गुड तलाश करते हैं, इस फाइल में पहले गुड कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो हम गुड को तलाश करते हैं और हम कहते हैं कि हाईलाइट करके हमें बताओ कहाँ कहाँ है गुड। ठीक है, तो ये अभी ये हमें अब बताता रहेगा कि यहाँ यहाँ गुड लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें जहाँ लुक था वहाँ ये गुड है। ठीक है, इसके बाद ये देख सकते हैं आप पूरी फाइल में गुड का लफ्ज़ मौजूद है। इस गुड को हम दोबारा लुक में तब्दील करके फिर अगले ऑप्शन की जानिब जाते हैं। हम कहते हैं कि जहाँ गुड है उसको लुक में तब्दील कर दो। ठीक है, हमने इसे यहाँ लिखा और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, तो अब देख सकते हैं जहाँ जहाँ गुड था वहाँ सारा अब लुक दोबारा वापस आ गया। अब हम इसे फाइंड करेंगे तो गुड हमें कहीं नहीं मिलेगा, हाईलाइट ऑल अब नहीं है इसमें। हम फाइंड करेंगे तो कहेगा कि मौजूद नहीं है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं लुक, तो लुक हम इसे कहेंगे कि हाईलाइट करके दिखा दे हमें, ये देखें। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है गो टू का। अब गो टू किस लिए इस्तेमाल होता है? गो टू का ऑप्शन इस्तेमाल होता है मसलन हमें पेज नंबर 10 पे हमें बाद में किसी ने, हमने कोई बुक लिखी या कुछ हमने रीडिंग लिखी है, उसके बाद किसी ने हमें कहा कि यार पेज नंबर 10 पर एक गलती है, तो अब हम
यहाँ तलाश करते हुए जब इस तरह जाएंगे सैकड़ों पेजेस में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, गो टू पर आएंगे और यहाँ हम लिखते हैं पेज, और यहाँ पेज नंबर लिख देंगे। हमें पेज नंबर 10 पर जाना है, ठीक है। हम इसे ओके कर देंगे, गो टू, ये देख सकते हैं आप। अब हम पेज नंबर 10 पर आ गए। अब यहाँ से हम वापस पेज नंबर 1 पर जाना चाहते हैं, हम यहाँ पेज नंबर 1 लिखेंगे और हम गो टू पेज नंबर 1 पर पहुँच गए। सबसे आसान तरीका, ठीक है। इसके अलावा हम किसी सेक्शन पर जाना चाहें, किसी लाइन पर जाना चाहें, बुक मार्क पर, कमेंट्स पर, और बहुत सारी चीज़ें इसमें और हैं, हेडिंग वगैरह पर जाना चाहें, टेबल पर जाना चाहें, ग्राफिक्स वगैरह पर भी जा सकते हैं। अब हम इसे कहते हैं कि हमें लाइन पर जाना है। अच्छा, कौन सी लाइन पर? पहली लाइन पर जाना है, ठीक है। हम यहाँ कहते हैं हमें लाइन पर जाना है। अब लाइन नंबर हमने लिखना है, हमने लाइन नंबर 1 पर जाना है। हम गो टू पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप, हमारा कर्सर लाइन नंबर 1 पर। अगर हम इसे कहते हैं कि हमें लाइन नंबर 4 पर जाना है, तो हम गो टू पर क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। लाइन के बाद हमारे पास है अगला ऑप्शन, अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में कोई टेबल है, मसलन टेबल, चले हम देखते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई टेबल है और उस टेबल को हम उस टेबल पर हम जाना चाह रहे हैं, तो हम टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखते हैं एंटर टेबल नंबर। हम जो फर्स्ट टेबल है उस पर जाना चाहते हैं, तो हम गो टू पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सीधा हमारा कर्सर इस टेबल तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इस यहाँ से ये अभी पेज नंबर है 3। अब यहाँ से हम वापस अगर जाएंगे तो लाइन और लाइन नंबर 1, ठीक है, गो टू। तो ये तो हो गया हमारा गो टू का ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट का। अच्छा, सिलेक्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के ज़रिए हम अगर इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहें, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कोई कलर वगैरह दे सकते हैं, देकर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करते हैं कि मसलन हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मसलन हमने लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मसलन हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये यहाँ हम इसे एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमने ले लिया, इसे ले लिया, ठीक है। अब हमने इन ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर सिलेक्ट करना हो, मतलब इसे यहाँ लेकर जाना है हमने और इसे भी यहाँ लेकर जाना है, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें इसे एक साथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ क्लिक करके ड्रैग करना होता है, जिससे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हम एक साथ इन्हें मूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज तक की क्लास में हमने एडिटिंग ब्लॉक को तकरीबन समझ लिया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में जब पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी रहनुमाई करें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।